अच्छा, तो ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करने लगे हैं। ये डी पार्ट विजिबल है कि थोड़ा सा और जूम इन कर दूं आप लोगों के लिए? जूम इन करने और। ओके। सो द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एम्पेरिकल फार्मूला। उसने हमें एक बताया है कि सेलेनियम फॉर्म्स अ कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली सेलेनियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। The compound contains 9.6% of oxygen by mass and 42.8% chlorine by mass. Calculate the empirical formula of this compound. So, I hope आप सबको method याद है of finding out the empirical formula. So, first of all, empirical formula में ज़ैनब आप बताएं, what are we supposed to do here? Are we given the complete information or we do have to like कुछ find करने की ज़रूरत है? सर सिलेनियम की परसेंटेज। परसेंटेज, एक्सेलेंट। तो हमारे पास नुमान तीन एलिमेंट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड: सेलेनियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। उसमें से क्लोरीन एंड ऑक्सीजन परसेंटेज इज गिवन। द ओनली परसेंटेज विच इज मिसिंग इज सेलेनियम्स। तो हम सेलेनियम की परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होती है, सो विल सब्ट्रैक्ट दीज द गिवन परसेंटेजेस फ्रॉम 100. So 100 minus 9.6 minus 42.8. तो फिर जो रिमेनिंग परसेंटेज रह जाएगी दैट वुड बी फॉर सेलेनियम। कितना बन रहा है? सर ये बना 47.6। 47.6%, जो कि इसके आगे हम लिख देते हैं सेलेनियम। अब द मेथड जो होता था फॉर empirical formula was to write the symbols of each element, that is selenium, oxygen and chlorine, and their percentages just below their symbols. So 47.6% here. Oxygen has a percentage of 9.6 and chlorine has 42.8. And what is the next step, Noman? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? What is the next step? क्या करते थे empirical formula में? परसेंटेजेस आ गई हैं। Yes, आ गई हैं। क्या करते थे इसके बाद? आई फॉरगॉट। Okay. So we divide these percentages by their masses, जो उनके molecular mass है, which are mentioned in the periodic table. वो तो गिवन ही So नहीं है। वो आपको पास periodic table में, periodic table तो given होगा ना? तो आप लोग search up the periodic table और then tell me what are the molecular masses for each of them. ऑक्सीजन का Oxygen तो and वन होता है chlorine, ना? I remember. हाँ, ऑक्सीजन का तो वन होता है ना? 16। ऑक्सीजन का 16 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। Zainab, do you have periodic table? Selenium's आई थिंक इसका MR, 34 है। are you sure? Let आई me डोंट check थिंक again. सो। 78.71 78 34 78.971। 34 है, सॉरी। 79. 34 is its atomic number, तो 79 उसका mass number है। तो अब हमने इनके परसेंटेजेस को इनके masses से डिवाइड करना है। So 47.6 divided by 79 gives us 0.602. 6025.
9.6 divided by 16 gives us 0.6, and 42.8 divided by 35.5 is 1.20, 205, 206. So अब सबसे smallest number is 0.6. So जिसमें सबसे smallest number होता है, we divide every जो है ना वो हमारा जो आंसर आया है लास्ट पार्ट में, उसको हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं टू गेट दी रेशो. सो वी आर गेटिंग 1:1:2. सो सेलेनियम इज 1, so is oxygen, and chlorine is 2. So that is our empirical formula. Okay, I hope it's clear now. Shall we move on to the next question? So, Any questions regarding this particular concept? Zainab, Noman? Nice. Okay, let's move to this question here. Achha, this question is regarding the volume of a gas. इसने कहा है कि calculate the mass of oxygen in the 11.5 dm cube sample at room temperature and pressure. Give your answer to two significant figures. Now, who will tell me कि what does this unit or what does this quantity represents? 1000 centimeter cube, if I'm not wrong. No, it is, वो तो बिल्कुल ठीक है. It is 1 dm cube is equals to 1000 centimeter cube. But ये quantity किस चीज को represent कर रही है? What, ये जो value Is है, volume of gas. volume of a gas. Excellent. So we have been given what? We have been given the volume of oxygen gas. And using this value, using this quantity, we are supposed to measure the mass of oxygen. अब mass का हमें formula पता है क्या है? We can write that down. Mass is equals to, oh sorry, moles is equals to mass over mr. अब mr तो चलो ऑक्सीजन का हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो मोल्स हमें चाहिए. अब मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास जो चीज गिवन है उसको यूज करना पड़ेगा. तो इज देयर अ फॉर्मूला दैट लिंक्स मोल्स एंड वॉल्यूम? 11.5 into 24,000. मैं लिख देता हूँ, फिर उसको देख के आप लोग मुझे बताना कि कौन सी वैल्यू हम किधर पुट करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू मोल्स टाइम्स द मोलर गैस वॉल्यूम विच इज द स्टैंडर्ड, जो कि 24 dm cubed होता है. तो हमारे पास वॉल्यूम है दैट इज 11.5 moles we can determine, एंड 24 इज here. तो हम डिवाइड करेंगे बेसिकली इनको. तो अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे विल एंड अप एट 0.479 मोल्स. अब ये जो क्वांटिटी मोल्स की आ गई है, वील यूज दिस इन दिस फॉर्मूला सो टू गेट द mass of oxygen gas. So 0.479 is equals to mass. We are supposed to find it out. And mr of oxygen gas कितना होगा? What is the formula for oxygen gas? कौन बताएगा भाई? What is the formula for oxygen gas? ये तो बहुत इजी है भाई, इसका तो फॉर्मूला बता दो. ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? नुमान, जैनब?
सर किसी को? यस। ऑक्सीजन गैस का क्या फॉर्मूला हो सकता है? जैनब। सर मुझे नहीं पता। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गैसेस? का फॉर्मूला नहीं आता? O2, सिंपल एज दैट। सर ये तो सिंबल है। सिर्फ फॉर्मूला कहते हैं। सर ये तो सिंबल गलत इज बात। O। सर सिंबल के साथ ही ये लिखते हैं। नंबर्स जब ऐड हो जाते हैं तो उन्हें हम फॉर्मूला कहते सर हैं। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों पूछ रहे हैं? इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। सर यही इज तो ट्राइंग टू व्हाट इज द ट्रिक फॉर्मूला? अस। फॉर्मूला बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। तो ऑक्सीजन गैस में दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, देयरफॉर इसका फॉर्मूला इज O2। तो इसलिए O2 की मदद से हम MR निकालेंगे ना। यू जस्ट, और डू यू यूज जस्ट O टू फाइंड आउट द MR ऑफ ऑक्सीजन गैस? बताओ। MR में हम सिर्फ सिंबल यूज करेंगे कि फॉर्मूला यूज सर करेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म तो हम यस। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे उसका टू एमआर। करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। तो 16 × 2 32 हो जाएगा। और फिर इस वैल्यू को 32 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द मास इन ग्राम्स। और उसने आंसर में हमें स्पेसिफिकली कहा है बोल्ड लेटर्स के अंदर, टू गिव द आंसर इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास आ रहा है 15.33 आ रहा है। अब मैंने इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना है, तो आई जस्ट पुट इट एट 15 ग्राम्स। ओके। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। इज इट? ये है सर। आज लगता है सबकी एनर्जी डाउन हुई पड़ी है, रिस्पॉन्सेज बहुत स्लो आ रहे हैं। चलो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी लेवल हैज इंक्रीज नाउ, सो पे मोर अटेंशन एंड बी मोर रिस्पॉन्सिव। और पार्टिसिपेशन के लिए क्वेश्चंस पूछा करें अगर इफ देयर समथिंग विच यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। सो दिस क्वेश्चन सेज कि सल्फेमिक एसिड, जिसका फॉर्मूला इज NH2SO3H, is a white crystalline solid. It reacts with aqueous sodium nitrite to make nitrogen gas, as shown in the equation. An excess of sulfamic acid reacts with 20 centimeter cubic sample of 0.150 mole per dm cubed of sodium nitrite. Calculate the maximum volume in dm cubed of nitrogen formed, measured at room temperature and pressure. सो उसने हमें इस पूरे डेटा के अंदर सम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की है, इट सेज कि दिस एसिड इज इन एक्सेस। ठीक है। और ये सोडियम नाइट्राइट, इसकी उसने हमें वैल्यूज बता दी है, वॉल्यूम की भी एंड कॉन्सेंट्रेशन की भी। ओके। सो अब उसने हमसे डिमांड क्या की है? उसने हमसे पूछा है कि ये जो नाइट्रोजन गैस है, इसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। ये वैल्यूज यूज करते हुए इसका हमने वॉल्यूम बताना है, और वो भी किसमें? इन डीएम क्यूब में। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? कौन बताएगा कि व्हाट मेथड आर वी गोइंग टू फॉलो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस? सर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फॉर नाइट्रोजन व्हाट? गैस? लिखा तो है फॉर्मूला, नाइट्रोजन गैस नहीं नहीं, एन वो टू तो लाइक हाउ डू वी फाइंड आउट? व्हाट? वॉल्यूम। यस। वही जो लास्ट हमने क्वेश्चन में यूज किया है। व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट वी यूज्ड इन द लास्ट क्वेश्चन? मोल्स इज इक्वल्स टू समवट मास ओवर एमआर, आई गेस। वो तो मास था ना, वॉल्यूम डज नॉट
come in that particular formula. वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला है. You guys have not yet memorized the formulas. ये पेपर में नहीं गिवन होंगे and they will cost you a lot. पेपर में sometimes पेपर बहुत heavily moles and calculation based आ जाता है. So if these formulas, चार formulas हैं maximum जिनको आपने जो है ना याद करना है, और वो बहुत easily एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं. तो ये this is the formula. वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल, और ये जो Times this value will be given 24 dm cube. nothing will be given. This is what you have to memorize. This is the formula. Okay, so the same formula will be used here, but हमारे पास moles नहीं है इसके. How are we supposed to find the moles of nitrogen gas? Formula is the same. Formula यही है कि moles times 24 dm cubed, but we don't have moles of nitrogen gas. So how are we going to find out the moles of nitrogen gas? उसके लिए we are going to use these values of this sodium nitrite. अब लास्ट क्लासेस में आई टोल्ड यू गाइस कि जो इक्वेशन होती है वो इट इज अ मींस ऑफ explaining the relationship between two particular reactants and products. तो हम सोडियम नाइट्राइट और नाइट्रोजन गैस के दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे. वो रिलेशनशिप उनके कोफिशिएंट से पता चलता है कि द सोडियम नाइट्राइट जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम नाइट्राइट इज एबल टू मेक हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. सो फ्रॉम द इक्वेशन हमें ये नजर आ रहा है कि 1 मोल ऑफ सोडियम नाइट्राइट is able to form 1 mole of nitrogen gas in this chemical reaction. So अगर हम सोडियम नाइट्राइट के moles find कर लें using the given values, we can apply that molar ratio to find the moles of nitrogen gas. And once we have the moles of nitrogen gas, we can simply apply the formula that I've written on the screen to calculate the volume of nitrogen gas, which is the ultimate goal for this particular question. Okay, have I made myself clear? So I you think guys try it out. I'm giving you like 3 to 4 minutes to do this question, and then I'll be demanding answers in the chat. I've explained the procedure of how to do this question. So both of you guys get to do this question right away. sir, we Start. have to find out the What? करना है क्या नहीं, what do we have to do in the following question? Read it again so that you will Cal- understand what you have to do. नहीं, calculate the maximum volume in dm cube. Of nitrogen? Yes, point. Yes. So this is the formula that I've written. So how are you going to find the volume even when you don't have its moles? So moles find करने के लिए I just explained what you have to do. What is the You- formula for moles? There सर is ये no आपने formula एक्सेस किसके लिए लिखा हुआ है? इसके लिए. This is an excess, तो इसको हम use नहीं करेंगे. मतलब NaNO2 नहीं? NaNO2 is limiting. की values दी हुई हैं. ठीक है. देखो नुमान, हमें सोडियम नाइट्राइट की वैल्यूज दी हुई हैं. वो क्यों दी हुई हैं? दे आर नॉट जस्ट देयर फॉर लाइक जाया उनको तो नहीं करना ना. वो दीज वैल्यूज आर यूजफुल. वी आर गोइंग टू यूज देम टू फाइंड समथिंग. ये दोनों कौन सी वैल्यूज हैं जो मैंने ग्रीन के अंदर सी ग्रीन में अंडरलाइन की हुई? वॉल्यूम किस 20 चीज की सेंटीमीटर वैल्यू? वॉल्यूम एंड दूसरी चीज, दूसरी वैल्यू. moles. नो, इट्स नॉट मोल्स. There is written moles, mol. आई नो इट इज और रिटन. आप पूरे पूरे एक पढ़ो ना उसका यूनिट क्या है जी. जैनब. एक कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला था, वो कौन सा था? यस, वो है मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन 1000. दिस इज द फॉर्मूला.
डू इट एंड देन सेंड मी द चैट। करने से क्वेश्चंस होते हैं। These are the two formulas that will be used in this question, and the ratio How will be do, applied. sir, ठीक है, how do we write 3 times 3 into 10 raised to power minus 3? 3 into 10 raised to power minus 3 is इसका आंसर तो 0.003. 0.003 आ रहा है। That are the moles of sodium nitrite. So, sodium nitrite के मोल से can we find the moles of nitrogen? Yes, sir. रेशियो लगा के Yes, रेशियो लगा के। तो इसका करें 1:1 शाबाश। ही है रेशियो। 1:1 ही रेशियो है। सो तो जो ये वाला फॉर्मूला 0.00 कहाँ यूज हो रहा है, मोल्स इनटू 24 डीएमके। अभी जब वॉल्यूम निकालना होगा। हम्म। अब आपके पास मोल्स आ गए हैं ना कि दे हैव द जीरो सेम पॉइंट जीरो मोलर थ्री रेशियो। इंटू जो 0.003। Sir, the answer for this is 0.072 if I'm not wrong. लेट मी, मैं भी करता हूँ तो पहले यही आंसर है। चेक। ठीक है। 1:1 थी दोनों की मोलर रेशो। इधर से मोल्स जो आप लोगों ने फाइंड किए विच वॉज इट वॉज 20 टाइम्स 0.15 ओवर 1000। तो वो आता है 0.003। इसके भी 0.003 हैं तो इसके भी 0.003 होंगे। एंड देन finally we're going to apply this formula to find the volume when we have the moles now। और आप लोग कह रहे हैं 0.72 डीएम क्यूब आ रहा 0.072। है। ओके। तो वॉज इट डिफिकल्ट? सी आप नहीं लोगों ने सर। खुद ही की है, लेकिन मतलब देखने में तो बहुत सारी उसने एकदम से इतना पैराग्राफ सा लिख दिया एंड एवरीथिंग, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। यू जस्ट हैव टू मतलब लिंक करना होता है चीज़ों को, और इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसीलिए लास्ट टाइम भी आई वाज टेलिंग यू गाइस टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन। प्रैक्टिस से वैसे ही जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होगा, और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। नाउ we have another concept that we did in our recent class, which was percentage yield. Now, अब Yes. उसने हमें बताया है, in an experiment 10.8 grams of carboxylic acid is reacted with an excess of alcohol. The experimental yield of ethyl propanoate, मतलब this is the product basically in this question. So this is the product. This carboxylic acid is our reactant, one of the reactants. The other reactants is excess, which is the alcohol. So we will not use that. और उसकी उसने कोई information भी नहीं दी। फिर उसने बताया कि the relative formula mass of the carboxylic acid, which is basically the reactant, is 72. Show that the maximum possible yield of ethyl propanoate is 15 grams. Okay. So हम ये कह सकते हैं कि the acid that we have, हम लिख लेते हैं acid प्लस अल्कोहल से जो हमारा प्रोडक्ट आया है इसका नाम है इथाइल प्रोपेनोएट। This is the given yield. विच वन? दिस इज द गिवन यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड Yes, yes. 9.45। हमने कैलकुलेटेड वाली निकालनी है और प्रूव करना है कि वो 15 आए, एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड द परसेंटेज। सो हमारे पास एसिड का पहले जो हम मैथ है, परसेंटेज निकालेंगे। नहीं नहीं, हम वी वोंट फाइंड द परसेंटेज। हम क्या करेंगे कि हमें इसका मास गिवन है विच इज 10.8 ग्राम्स। ओके। हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक निकाल सकते हैं ना? जी। कैसे निकालते हैं मोल्स अगर मास गिवन होता है? क्या वर इज द फॉर्मूला? मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर एमआर। जी शाबाश। तो मास 10.8 है, एम आर उसने क्वेश्चन में ही दे दिया था विच इज 72।
तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसके मोल्स इस एसिड के। तो 10.8 डिवाइडेड बाय 72 जो कि आ रहे हैं 0.15। ठीक है। अब इसकी बिकॉज ये चीज अभी आपने पढ़ी नहीं हुई बट आई कैन टेल यू कि एसिड और इस इथाइल प्रोपेनोएट की जो रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है। तो इसके मोल्स मतलब एसिड और जो प्रोडक्ट है उसकी आपस में रेशियो इज 1:1। जब आप लोग ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिकली क्वेश्चन है तो जब आप लोग पढ़ लेंगे वो वाला चैप्टर तो आप लोग इसकी क्वेश्चन बना के तब खुद से भी देख सकते हैं कि इट विल बी 1:1। So since they have the same molar ratios, so their moles will also be exactly same. If acid has moles of 0.15, the product will also have the same number of moles. तो इसके 0.15 मोल्स आ गए। ओके। अब हमने इसका मास निकालना है। हाँ हाँ, और प्रूफ करना है कि 15 ग्राम्स है। तो इथाइल प्रोपेनोएट का जो फॉर्मूला होता है वो भी डेफिनेटली मेरे ख्याल से दिस इज अ डी पार्ट इन द फर्स्ट फ्यू पार्ट्स द फॉर्मूला वाज गिवन। सो आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला डाउन फॉर यू गाइस और फिर आप लोगों ने इसका मास निकालना है। तो द फॉर्मूला फॉर इथाइल प्रोपेनोएट इज C2H5 wait a minute. Yes, C2H5 C00 C2H5. Hmm? This is the formula for ethyl propanoate. तो इसका एमआर आप लोग निकालेंगे। मोल्स आ गए हैं तो हम इसका मास फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट इज इट्स एमआर? एमआर कैसे निकलेगा? कार्बन का होता है 12। हाउ मेनी कार्बन्स डू वी सी है? 2, टोटल में टोटल कार्बन 3 and 2, 5, 5। तो 5 × 12 ये कार्बन का हो गया। फिर हाउ मेनी हाइड्रोजन्स डू वी सी है? 5, 10, 10। तो 10 × 1 हाइड्रोजन का एक होता है। सिमिलरली हाउ मेनी ऑक्सीजन डू वी सी हियर? 2, 2। 2 × 16। अब इन सबको ऐड करेंगे। 5 × 12 इज 60। 10 एंड दिस इज 32। सो अगर हम इनको करते हैं सो दिस बिकम्स 70 एंड 102। और 0.15 को अब हमने मास ओवर एमआर लगाना है फॉर्मूला। मोल्स इज इक्वल्स टू मास और वी हैव टू फाइंड द मास। तो मोल 0.15 है। Mass we are supposed to find out and MR is 102. When we multiply these values, तो हमारे पास आता है 15.3। सो वी आर हम उसको राउंड ऑफ करके 15 शो कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। ओके। Now calculate the percentage yield of ethyl propanoate in this experiment. So that is going to be how do you find the percentage yield? जो given yield है divided by the calculated yield. तो given yield was 9.45 divided by 15 times 100.
That is 63%. Okay. ओके। ठीक है। So um let's move ahead to the next few questions which are left. So these are now few MCQs जो हम करने वाले हैं. The first MCQ reads: the relative formula masses of four compounds are given. A student has a 1.0 gram sample of each compound. Which sample contains the highest number of moles of oxygen atoms? So कह रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर अ, सबका फॉर्मूला मास हैज बीन गिवन. ठीक है. सो ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स किस में हाईएस्ट होंगे? सो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मैंने एक आप लोगों को फॉर्मूला बताया था. दैट इज, और पार्टिकल्स का जो होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो होते हैं मोल्स टाइम्स द एवोगैड्रो कांस्टेंट. ठीक है. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स स्लाइटली डिफरेंट है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल हम पहले कंपाउंड के वो निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं. हर एक के मोल्स निकालने पड़ेंगे. हमारे पास सब कंपाउंड्स का कितना सैंपल है? 1 मास है, 1 ग्राम सैंपल है. तो हम इनके मोल्स निकालते हैं तो वो इट बिकम्स 1/102, विच कम्स, इसके मोल्स हैं 0.0098. फिर सिमिलरली इन सब के भी निकाल लेते हैं साथ ही. 1/80. समझ लग रही है कि वाई एम आई डूइंग दिस? ताकि फिर हम इस इक्वेशन के अंदर सबके रिस्पेक्टिव मोल्स डाल के नंबर ऑफ एटम्स डिटरमिन कर सकें. 0.0125. देन वी हैव दिस 0.0102, एंड फाइनली 0.0159. ओके. तो जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे. ठीक है. अब हाँ, इसके अंदर जो है ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं पहले कंपाउंड के अंदर? How many atoms are present in this first? How many atoms of oxygen are present in the first compound? Noman? सर हाँ जी. सो बताओ कितने थे? नोमान, यू वर सेइंग समथिंग. क्या बताना था? How many oxygen atoms are present in all of these compounds? ऑक्सीजन एटम्स? Yes. कंपाउंड के अंदर एटम्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं. ए, कौन से वाले में? सारों के अंदर. इन टोटल? नहीं, सबका इंडिविजुअल. सर एटम इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ What? एटम इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ Nothing. Atom is atom. फिर
एटम तो एटम होता है, बट मैं उसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। So why do you want to like what is the need of asking the definition of atom here? इट्स बीन अ व्हाइल आई हैवंट स्टडीड केमिस्ट्री, सो सारा कुछ भूल गए। Atom is just a single जो है ना वो ठीक है, like ठीक है, unit of an वो तो मुझे element. पता ही है। फिर So ऑक्सीजन एटम्स। how many oxygen atoms are present in each compound? Zainab आप बता दें. फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 1 है, और थर्ड में 4 है, और डी के अंदर क्या लिखा हुआ? 3 डी के अंदर। पहले में 3 है नजर आ रहे हैं, हम्म। सेकंड में 1 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है. हम्म। ठीक है. सो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स चाहिए. इसका मतलब वो हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स नहीं पूछ रहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछ रहे. तो इस कंपाउंड का पूरा जो वो है क्या नाम है, पूरे मोल्स जो है वो 0.0098 है. तो ऑक्सीजन एटम के जो मोल्स होंगे वो 3 टाइम्स है. ठीक है, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे. अगर किसी एटम के मोल्स फाइंड करने हो तो वो द कंपाउंड के मोल्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं. तो मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3. तो बेसिकली ये सी एंड डी में से कोई एक पर्टिकुलर आंसर बन रहा है हमारा. वो चेक करना पड़ेगा कि किससे वैल्यू ज्यादा आ रही है. सो सी का आंसर हमारे पास आ रहा है 0.0408 एंड डी का आंसर आ रहा है 0.0159 टाइम्स 3 विच इज 0.0477. ठीक है, सो दिस इज डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके. Now 10 centimeter cubic of the next question is 10 centimeter cubic of propane is burned in 70 centimeter cubic of oxygen in a closed container. What is the total volume of gas present after the reaction? Okay, so ये this is a like common exam question है. इस तरह का question तकरीबन every other paper में आ जाता है. This is about volume of gases. So कह रहा है this gas, the first one, I can rewrite the equation here below. Okay, so it says okay, this gas has a volume of 10 centimeter cubic, oxygen has 70 centimeter cubic. So you are supposed to determine the total volume of gas after the reaction. These values are before the reaction has started. So what will be the amount of volume of gases present after the reaction? So ये मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ. अब इसको कैसे करना है? द थिंग इज ये हमें इनकी डेटा गिवन है, ये मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ. इनके 10 cm cubed and 70 cm cubed. Now from the equation we are getting to know this. Okay, 1 mole of this can react with 5 moles of this. Okay, तो अगर हमारे पास इसका 10 है सेंटीमीटर क्यूबिक तो इसके 50 सेंटीमीटर क्यूबिक रिएक्ट करने वाले हैं. ठीक है, विच मीन्स के 20 सेंटीमीटर क्यूबिक आर एक्स्ट्रा. सो 20 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ ऑक्सीजन गैस विल नॉट रिएक्ट. ठीक है, और जो एक्स्ट्रा होते हैं हम उसके साथ अपने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट नहीं करते. ठीक है, तो हम प्रोपेन के जो वॉल्यूम है उससे हम इन दोनों के वॉल्यूम्स फाइंड आउट करेंगे. सिंस प्रोपेन हैज अ रेशो ऑफ 1:3 विद CO2, so
जो CO2 है वो 30 बनने वाला है, 10 × 3। इसी तरह विद वाटर, वाटर इज नॉट अ गैस, तो हमें वाटर, क्योंकि हमने इस चीज को भी देखना है। समटाइम्स वो इधर इस इक्वेशन में लिक्विड की जगह गैस लिख देता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम वाटर के जो है ना मोल्स लेंगे, क्योंकि तब वो स्टीम या वेपर्स बन रहे होते हैं। राइट नाउ उसने हमें सिर्फ लिक्विड कहा है, तो हम इसके मोल्स, इसके वॉल्यूम को यूज नहीं करेंगे। तो सिमिलरली हमारे पास 30 सेंटीमीटर cubic of carbon dioxide is being formed, और 20 सेंटीमीटर cubic of oxygen gas was left. So a total of the gas which will be present at the end of the reaction will be 50 centimeter cubic. Okay, so that is our right answer. 50. Gas at end of reaction will be 30 centimeter cubic CO2 and 20 centimeter cubic oxygen which was left, which makes 50 centimeter cubic. Okay, now this is the last question for today's class. When a mixture of sodium chloride and sodium hydrogen carbonate is heated, the reaction shown takes place. 2 moles of sodium hydrogen carbonate is decomposed to form sodium carbonate, carbon dioxide gas, and water vapors. Sodium chloride is unchanged on heating. When 6 grams of this mixture is heated, the loss in mass is 1.5 grams. Okay, what is the percentage by mass of sodium hydrogen carbonate in the mixture? Now this is a difficult question. वो कह रहा है कि जब हम इस चीज को हीट करते हैं, इस अपने रिएक्टेंट को, तो इसमें से 1.5, ये 6 ग्राम्स था स्टार्ट में, जब हीट करते हैं तो इसमें से 1.5 ग्राम्स हैव बीन लॉस्ट। जो लॉस होता है वो बेसिकली गैसेस होती हैं, क्योंकि गैसेस एस्केप कर जाती हैं। यानी इन दोनों का टोटल जो है वो 1.5 ग्राम्स है मास, और इसका है 4.5 ग्राम्स। इसका मतलब तो हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके मोल्स निकाल सकेंगे तो हम इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। तो मोल्स ऑफ सोडियम जो है वो, क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट के मोल्स निकाल लेते हैं, और उससे हम आंसर निकाल लेंगे अपना। तो मोल्स ऑफ Na2CO3, हमें Na2CO3 का मास पता चल गया है, वो है 4.5, और हमने हमें उसका MR चाहिए। तो 4.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स MR। व्हाट इज द MR ऑफ सोडियम कार्बोनेट? सोडियम का होता है 23, कार्बन इज 12, एंड ऑक्सीजन इज 16। इसका MR कौन निकालेगा? नोमान, आप इसका MR निकालें। दीज आर द मॉलिक्यूलर मैसेज। तो इनको फिर नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके फिर आपने टोटल MR मुझे बताना। Sir, I do have to find it individually now. यस। अच्छा।
फिर पहले वाले का है समवट 5.1 5.1। फॉर सोडियम। नो, मतलब आपने इनका, नो, इंडिविजुअल मैं मोल्स निकालने को नहीं कह रहा था आपको, मैं इनका एमआर निकालने को कह रहा था। 23 टाइम्स 2, 12 टाइम्स 1, एंड ऑक्सीजन का 16 टाइम्स 3, विच मेक्स 46, 12 एंड 48, जो कि टोटल में हमारे पास बन जाएगा 106। ठीक है, सो द परसेंटेज बाय मास, और अब हमारे पास मोल्स आ जाएंगे सोडियम कार्बोनेट के। What is the percentage by mass of sodium hydrogen carbonate in the mixture? So, uh, अच्छा, there was this thing जो हमने मिस की है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो ये था कि there was a mixture of sodium chloride and sodium hydrogen carbonate। उस मिक्सचर में से सोडियम क्लोराइड हैज इज अनचेंज्ड। तो सिर्फ जो चीज, क्या नाम है, जिस जो रिएक्ट हुई है हीट करने पे टूट गई है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, तो उसमें से 1.5 ग्राम्स जो है वो लॉस हो गया इस पूरे मास में से। तो जो बाकी पूरी चीज रह गई है वो सारी की सारी सोडियम कार्बोनेट रह गया। अब सोडियम क्लोराइड भी इधर था, जिसको हमने हीट किया था। सोडियम क्लोराइड और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो टोटल है वो था 6 ग्राम। सही है, ये दैट इज व्हाट उसने बताया, लेकिन उसने इक्वेशन में सोडियम क्लोराइड लिखा नहीं है। तो इन दोनों का टोटल 6 ग्राम्स है, जिसमें से 1.5 ग्राम्स इज लॉस्ट। तो ये जो बाकी बच गया है इनमें से, यानी इन दोनों का टोटल, वो विच विल बी 4.5 ग्राम। ठीक है, 4.5 ग्राम में से कुछ अमाउंट सोडियम कार्बोनेट की भी है। तो हमने बस फाइंड करना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस पूरे मिक्सचर के अंदर, इस 6 ग्राम के मिक्सचर के अंदर कितनी परसेंटेज है। हाँ भाई, बताएं कि क्या करेंगे हम आगे। यानी ये जो हमने 4.5 ग्राम्स इधर हम डिवाइड करने लगे, ये नहीं कर सकते हम। जैनब, नुमान, एनीथिंग? जी सर। जैनब, आर यू इवन इन द क्लास? जी सर। ओके, सो व्हाट आर योर थॉट्स कि अब क्या करना चाहिए? Sir, I think we should move on. वी शुड, Move on to the next question. देयर इज नो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Uh, सो देखो, क्वेश्चन की समझ लगी है कि मैं दोबारा बताऊं? सर आप दोबारा बता दें अच्छा होएगा। ओके, उसने कहा है एक मिक्सचर था सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaCl एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिनका टोटल मास 6 ग्राम्स है।
और इसको हमने इस मिक्सचर को हीट किया है। जब मिक्सचर को हीट किया है तो जो सोडियम क्लोराइड है इट इज अनचेंज्ड, वो रिएक्ट नहीं करता, वो हीट होने पे नहीं टूटता। और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इट ब्रेक्स डाउन इनटू द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फिर उसने कहा when 6 ग्राम of this mixture is heated the loss in mass is 1.5 grams। तो 1.5 ग्राम्स का जो लॉस हुआ है इन मास, सो वो बेसिकली लॉस इज बिकॉज ऑफ द escaping of gases formed, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो वो पूछ रहा है कि what is the percentage by mass of sodium hydrogen carbonate in the mixture। अब हमारे पास पीछे चार जो है वो दो चीजें रह गई हैं। एक NaCl है और एक सोडियम कार्बोनेट है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो टूट गया है और वो इन चीजों में कन्वर्ट हो गया। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन दिस मिक्सचर। 6 ग्राम्स के सैंपल के अंदर ये कितना परसेंटेज है, इसकी अमाउंट कितनी बनती है। ठीक है, सो हमारे पास अब एंड पे दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज लेफ्ट, जो कि टोटल 4.5 ग्राम्स है। हम्म। ठीक है सर। क्या हुआ। ऑल गुड। देखो मेरे ख्याल से हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों के टोटल मास पता है 1.5 ग्राम्स है, हम इन दोनों के मोल्स निकाल सकते हैं। जी। तो हम वो निकाल लेते हैं, इन दोनों का टोटल MR हम फाइंड करते हैं, वो कितना बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, इसका होता है 18, तो दिस विल बिकम्स 62। और फिर 1.5 को 62 पे डिवाइड करके उससे हम सोडियम कार्बोनेट के जो है ना मोल्स निकाल लेंगे। जब इसके मोल्स आ जाएंगे तो हमें मास पता चल जाएगा और उससे फिर हम अपना जो है ना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज एन असाइनमेंट फॉर बोथ ऑफ यू, इसको करने की कोशिश करें। इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो कि आ सकता है पेपर में, तो ट्राई डूइंग इट। ठीक है। ठीक है सर। ओके।